Uh, Hello everyone. Very good evening to everyone. Myself, Bhumika Jain. I have secured AR 331 in this year's UPSC CSC 2025 examination. This paper is with regard to the session is with regard to the essay paper, and I'm really thankful to SPM IAS for allowing me to take this session and to help future civil servants, I must say. And this is a part of the Samarthan program by SPM IAS that I am taking this session. So I'll be just sharing a few insights about myself and why I might be qualified to take this session. I have scored 126 marks in this year's essay paper, which is amongst the highest. If you look at the average marks, they are below 120. I have secured 126 marks, and this was my third attempt, first means, and in the first attempt itself, I got AR 331. Some people might ask me, okay, how did you really know that essay was going to be your strength? So I would say that yes, I always knew it was going to be my strength because I have practiced a lot for it. A lot of people they put a lot of effort in GS paper, but they neglect essay paper, not knowing that it has the same 250 marks weightage in the mains total. And with less efforts also, you can score very well in essay paper. I'll first just walk you through why essay paper. Why should you pay so much importance to essay paper? First is because it's a very high yielding paper with very less knowledge. Even if you don't read anything, you don't memorize anything, it's a paper of your innovation, and it's a paper of your expression. So if you have a command over basic English or Hindi, whichever medium you are taking the exam in, you can, even with that, you can score very well in essay. So it does not need a separate, fact sheet or fact booklet that you need for other GS paper and even for optional. Second reason is because the cost benefit ratio is very high. So before we move on to study something, we should know that, okay, why are we studying this subject? What's the point of giving time to this subject? And even what's the point of attending this session? So I'll tell you why. It is because in essay paper, you have to devote less time to it. You have to memorize it less. Yet when you look at the toppers marks, and you might have gone through some of the toppers mark sheet, in that you will see in essay paper some toppers have scored even 80, 90 marks, and less than 100 marks, I would say, or maybe 110, 105 marks. But some people like me, we have scored 120 plus marks, and it is because of this one paper that we have made it to the list. Otherwise we would have been out of the list because our mains total would have been less. तो ये, अगर आप जीएस के मार्क्स देखो ना, यूजुअली सबके जितने भी टॉपर्स होते हैं सेम रेंज में आते हैं. इट मूव्स फ्रॉम 100 टू 120. यूजुअली 5 मार्क्स आगे पीछे हो जाते हैं, समटाइम्स 2-3 मार्क्स ही आगे पीछे हो जाते हैं, बस उससे आपकी पूरी पीडीएफ ही चेंज हो जाती है. विथ ईच 1 mark your ranks move by 10 ranks. You move by 10 ranks. तो अगर आप किसी चीज में 2 मार्क्स भी ज्यादा ला लेते हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली 10 रैंक ऊपर आ जाती है, एंड यू सिक्योर योर नेम इन द पीडीएफ. सो विथ ऐसे पेपर आपका जो डिफरेंस क्रिएट हो सकता है वो बहुत ज्यादा होता है. सो आई नो माई फेलो ऑफिसर फ्रेंड्स जो ऑलरेडी जिनके 100 आए हैं, 105 आए हैं ऐसे में. I made a jump from that marks to 126 marks, and it was because of practice, because I gave it a lot of practice to essay paper. तो जीएस में यही आपको एक एक मार्क्स के लिए ना बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट ऐसे में वही चीज आप थोड़े कम मार्क्स के लिए कर सकते हो. मतलब इट मीन्स आप अगर ऐसे पेपर में 4 दिन भी लगाओगे ना, वो आपको बेटर रिजल्ट्स यील्ड करेगा एज कंपेयर टू एक एक जीएस का टॉपिक, बिकॉज जीएस एंडलेस है. सेम गोज विथ ऑप्शनल. सी, इट इज बीइंग सेड कि ऑप्शनल ना कई बार लोगों का दोस्त नहीं होता है. यू नेवर नो द स्केलिंग सिस्टम. सो दैट्स वाई ऐसे पेपर इज समथिंग यू कैन वाउच अपॉन कि ठीक है, आई एटलीस्ट स्कोर 110. दैट विल सिक्योर मी इनफ मार्क्स टू बी ऑन द लिस्ट.
ओके, मूविंग ऑन, आई एम अज्यूमिंग अगर कोई भी डाउट होंगे तो यू गाइस कैन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल एड्रेस इट इन द लेटर हाफ ऑफ द सेशन, बिकॉज जितने मुझे डाउट्स आए थे व्हेन आई वाज बिगिनिंग द प्रिपरेशन, वो सब मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है थ्रू दीज स्लाइड्स ओनली. सो मे बी जो बचे हुए डाउट्स होंगे दैट वी कैन एक्चुअली एड्रेस एट द एंड ऑफ द सेशन. ओके, सो नेविगेटिंग ऐसे पेपर, अब हमने अभी तक ये बात करी है. आई एम अज्यूमिंग बाइलिंगुअल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. सो आई विल बी गोइंग विद दैट फॉर्मेट ऑल्सो. सो टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाई ऐसे पेपर, क्यों ऐसे पेपर को वेटेज देना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ ऐसे पेपर. With essay paper, the doubts that I have received the most is कि मैम where do we start? How do we start? As I have myself said कि there is no fixed syllabus for essay. There are no facts that you could mug up. So the problem becomes कि okay, what would be the sources for essay paper? That remains a major problem with that. So let's address it. I assume आपको एक how वाली slide दिख रही होगी. Let me know if you can see the slide, please. Okay, anyone in the chat box, can you see a navigating essay paper house slide? Yes, okay, good. Right, so अभी we will come to how essay paper. अब हम कैसे डील करें ऐसे से. सो फर्स्ट इज आपको उसका वैल्यू पता है. तो जैसे आप जीएस सब्जेक्ट के नोट्स बनाते हैं, मेक नोट्स फॉर essay also. I made separate notes. I made a separate copy for essay. And that's why I knew कि कोई भी ऐसे टॉपिक आए, be it GS like topic, be it philosophical topic, be it argumentative topic, I had enough content for essay paper. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ओके, आप जीएस का तो हमको यूपीएससी ने सिलेबस बता के रखा है कि ठीक है, जीएस वन में आर्ट एंड कल्चर करना है, मॉडर्न हिस्ट्री करना है, जीएस टू में वी हैव टू गो थ्रू पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस. बट व्हाट अबाउट ऐसे? पीपल आर इन अ मिथ कि यूपीएससी ने ऐसे का सिलेबस नहीं दे रखा. इट इज देयर इन द यूपीएससी नोटिफिकेशन. जब आप जाओगे, जब आप बाकी पेपर्स का सिलेबस देखोगे, यूपीएससी ने बोल के रखा है दैट ऐसे नीड्स टू बी कंसाइज एंड ऐसे नीड्स टू बी क्लियर, and marks would be rewarded for clear expression that should closely fit to the topic. Which means UPSC has itself said कि it doesn't matter आपकी क्या style है. Different people have different styles and I was fond of experimenting with the styles. जो अभी मैं आपको अपनी शीट्स के थ्रू भी दिखा दूंगी कि कैसे स्टाइल्स होती हैं अलग अलग. सो यूपीएससी कह रहा है कि इट्स ओके इफ यू हैव डिफरेंट स्टाइल्स, बट यू शुड फिट इट टू द टॉपिक. इफ एनी ऑफ यू आर न्यू टू दिस प्रिपरेशन, या किसी ने अगर ऐसे पेपर का पीवाईक्यू पहले नहीं देखा है, तो मैं आपको बता दूं, यू हैव टू राइट 2 essays. आपको सेक्शन ए में 4 ऐसे टॉपिक्स दिए रहते हैं एंड सेक्शन बी में 4 ऐसे टॉपिक्स दिए रहते हैं. एंड यू हैव टू चूज वन टॉपिक फ्रॉम ईच सेक्शन. एंड उसमें आपको अराउंड 1500, 2000, 2500 समथिंग वर्ड्स का ऐसे लिखना पड़ता है. इट्स अबाउट 13 पेजेस पर ऐसे. एंड इस बार तो यूपीएससी ने जो शीट दी थी उसमें यूपीएससी ने 15 पेजेस दिए थे पर ऐसे. सो इस बार लोगों को, कुछ लोगों को तो यही दिक्कत आई थी कि ओके 12 की जगह 15 पेज आ गए, तो 15 पेज जितना कंटेंट कैसे लाए अबाउट अ सिंगल टॉपिक. सो that content comes with a lot of notes. If you have clear notes for essay, आप आराम से 15 क्या, आप एक टॉपिक पे 20 पेज भी लिख सकते हो. आप एक टॉपिक पे एक पूरी बुक भी लिख सकते हो, once you know how to gather your thoughts together. So coming on to the how part of it, first is you have to make your notes. Now where should you make your notes from? essay के notes कहाँ से आएंगे? सो फर्स्ट इज, आप अगर इफ यू गो थ्रू न्यूज़पेपर्स, आप देखोगे न्यूज़पेपर्स में कई बार बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं. अभी आई बिलीव अगर आप में से कोई क्रिकेट फैन होगा तो दे वुड नो वैभव सूर्यवंशी, द 15-year-old हु इज अमंग्स द बेस्ट प्लेयर्स इन आईपीएल, राइट. सो उनके ऊपर एक बार एक मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था, बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी. सिमिलरली विराट कोहली पे एक पर एक आर्टिकल आया था, उसकी जो लैंग्वेज थी ना, ऐसे पेपर इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, द काइंड ऑफ वर्ड्स यू यूज एंड हाउ यू कुड कन्वे अ थॉट. आपके दिमाग में कोई चीज आती है, उसको आप कितने अच्छे से सब्सटेंशिएट कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट ऐसे पेपर इज अबाउट. तो फॉर मी, मैं क्या करती थी, व्हेन आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स लास्ट टू लास्ट ईयर, तो तभी से मैंने ऐसे पेपर पे फोकस देना स्टार्ट किया कि ओके ठीक है, इसके भी मुझे नोट्स बनाने हैं.
सो व्हाट आई डिड वाज, मैं ऐसे पेपर के लिए मैं न्यूज़पेपर्स जब भी रीड करती थी, आपको कोई 3-4 घंटे नहीं लगाने रहते न्यूज़पेपर पे। यू जस्ट हैव टू क्विकली स्कैन थ्रू पेजेस, क्या उसमें कोई ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं फिलोसॉफिकल एसेस बहुत आते हैं, आइडेंटिटी के ऊपर, लाइफ के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर। तो आप क्या करो, यू जस्ट यूज टेक्नोलॉजी, यू गो टू चैट जीपीटी और एनी एआई दैट यू यूज, आपको दिख रहा है ना कि ये थीम्स हैं, ये ऑफन रिपीटेड हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन जस्ट जस्ट पुट इन चैट जीपीटी, गिव मी say 20 quotes on happiness and give me 20 quotes on life. एंड अभी आप अगर देखोगे आईआर से रिलेटेड भी बहुत टॉपिक्स आ रहे हैं, वॉर से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड। सो से गिव मी 20 कोट्स ऑन से वॉर, ठीक है, गुड एंड बैड ऑल्सो। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, आप उससे एक लिस्ट निकाल लोगे। जब आप लिस्ट निकालोगे ना, तो जैसे आप बाकी जीएस के लिए करते हो कि थोड़ी सी चीजें आप याद कर लेते हो, वैसे आप ऐसे के लिए भी करो। जब आपको ऑफन रिपीटेड थीम्स दिख रहे हैं, तो जस्ट पुट देम हैंडी। आप क्या करो, हैप्पीनेस के ऊपर जैसे अब मुझे 10 कोट आते हैं, जैसे कि हैरी पॉटर अगर किसी ने देखी होगी, तो देयर इज अ कोट कि हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स इफ वन ओनली रिमेंबर्स टू टर्न ऑन द लाइट। सो ये ऐसा कोट है, ये अभी मैंने 6 महीने से कुछ नहीं पढ़ा है मेंस का, ठीक है, सिंस द टाइम आई क्लियर्ड मेंस, बट स्टिल आई रिमेंबर दिस कोट, क्योंकि मुझे मुझे वो मूवी पसंद थी, तो मुझे वो कोट भी याद था। राइट, तो ऐसे कोट्स निकाल लो। जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि आप एथिक्स में जो एग्जाम्पल्स यूज करते हो, सपोज कोई आईएएस ऑफिसर है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कभी, या से कोई आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का आपने नाम सुना होगा, ही बिल्ट अ रोड, कार्विंग अ माउंटेन। तो ऐसे एग्जाम्पल्स है ना, इनको आप हैंडी रखो। तो जब भी आप नोट्स बनाओ, आपको एक एग्जाम्पल्स का कलेक्शन बनाना है कि ओके ठीक है, रेजिलियंस के लिए किसका आ सकता है। एंड बाय द वे, ये आपके एथिक्स में भी बहुत हेल्प करता है, बिकॉज उसमें तो आपको एग्जाम्पल्स देने ही पड़ते हैं। राइट, आप ऐसे इंस्पिरेशंस का एग्जाम्पल बना सकते हो। आप ऐसे एक पूरी कोट्स की लिस्ट बना लो, लाइक इफ यू गो टू माय टेलीग्राम चैनल, उसमें मैंने एक कोट्स का पूरा इतना बड़ा कॉपी बना रखा था। सो आई हैड कोट ओवर एवरी थीम, विमेन के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर, काइंडनेस के ऊपर। आई हैड ऑल दोज थीम्स कवर्ड। और मुझे वो कोट, अब अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, कोई गाना अच्छा लगेगा, तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। सेम इज द थिंग विथ कोट्स, अगर आप कोई कोट से बहुत अच्छे से रिलेट करोगे, तो वो आपको खुद ही याद हो जाएगा। यू वोंट हैव टू गो अराउंड कि ठीक है इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना है, 2.4% है कि 2.3% है, ऐसा नहीं करना रहता। यू जस्ट गो थ्रू अ कोट, यू जस्ट लाइक दैट कोट, एंड इट गेट्स बिल्ट इन योर मेमोरी, लाइक मूवी डायलॉग्स जैसे याद हो जाते हैं वैसे। so in notes what you have to do is make an examples compilation, either make your own, और अगर आप अभी मेंस अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपके पास कम टाइम है। सो अगर आप खुद का, आपके पास पहले से कुछ नहीं है, जस्ट गो थ्रू टॉपर्स कॉपीज। टॉपर्स ने क्या क्या एग्जाम्पल यूज किए हैं, सारे लिख लो। गो थ्रू मल्टीपल टॉपर्स कॉपीज, राइट ऑल दोज एग्जाम्पल्स। गो थ्रू टॉपर्स टेलीग्राम चैनल्स, उन्होंने वहां पोस्ट कर रखे हैं अपने काफी सारे एग्जाम्पल्स, यू कैन गो थ्रू देम। गो थ्रू योर मटेरियल गिवन टू यू बाय योर कोचिंग, आपकी कोचिंग भी आपको कुछ ना कुछ मटेरियल देगी, उससे आप एग्जाम्पल्स निकाल लो। मतलब अगर आपके पास 20 पेज के भी एग्जाम्पल्स हो गए, इट इज मोर देन इनफ टू बी यूज्ड इन एनी ऑफ द एसेस, ट्रस्ट मी। एक एग्जाम्पल 50 जगह पे यूज आता है। सिमिलरली विथ कोट्स, चैट जीपीटी करो, कॉमन थीम्स डालो, एंड मग अप ऑल दोस कोट्स, राइट ऑल दोस कोट्स इन अ सेपरेट कॉपी, एंड उनको रिवाइज करते जाओ, तो आपके पास हर चीज को लेके कोट रहेगा किसी ना किसी चीज का। एंड आई टेल यू हाउ दिस कम्स इनटू इंपॉर्टेंस, मैं भी आपको दिखाऊंगी। सिमिलर विथ पोएम्स, कुछ छोटे छोटे स्निपेट्स होते हैं जो हम टॉपर्स कॉपीज में भी देखते हैं कि वो लोग कैसे यूज करते हैं। आई माई सेल्फ यूज टू यूज अ लॉट ऑफ पोएम्स बिकॉज आई रियली लाइक देम, मुझे जल्दी याद हो जाती थी। तो मैंने एक पोएम का कलेक्शन बना लिया था अबाउट रेजिलियंस, अबाउट अबाउट इंस्पिरेशन, अबाउट मोटिवेशन, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसे करके आप एक सेपरेट कॉपी बना लो, दैट कॉपी वुड सर्व एज योर नोट्स। बिकॉज सी, आपको नहीं पता कि आपके एग्जाम में क्या टॉपिक आएगा, बट यू डेफिनेटली लो कि ये थीम्स रिपीटेड होते हैं। तो इफ दोज थीम्स आर रिपीटेड, उनके ऊपर पहले से आप मटेरियल इकट्ठा कर लोगे, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। राइट, ओके। हाँ, वन मोर थिंग, आप जब नोट्स बना रहे हो ना, टेक अ लॉट ऑफ रेफरेंस टू टॉपर्स कॉपीज। टॉपर्स की कॉपी से जाओ, देखो उनका फ्लो कैसा है।
वो कहाँ कहाँ क्या क्या डाल रहे हैं। सी, कई लोग, जैसे आई यूज टू डू दिस, आई यूज टू स्विच बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक पेन, बिकॉज इसमें जीएस जैसा टाइम क्रंच नहीं रहता है। इट इज कंपैरेटिवली इजी पेपर, बिकॉज इसमें आपको बहुत तेज हाथ नहीं चलाना रहता है, आपको बस अच्छा से लिखना पड़ता है। सो आई यूज टू स्विच, मुझे कोई अच्छा एग्जाम्पल दिखता था तो मैं ब्लू पेन से अगर लिख रही हूँ तो मैं ब्लैक पेन पे स्विच कर लेती थी, फिर उसको मैं अंडरलाइन कर देती थी, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो उससे अपने आप आपका पेपर भी अच्छा दिखने लगता है, आपके में कुछ वैल्यू एडिशन भी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, और कैसे नोट्स बना सकते हैं? आई टेल यू अ ट्रिक विच आई यूज्ड लाइक 2 days बिफोर मेंस, जब मेरा सब हो गया था। ओके, देयर इज अ डाउट दैट कैन यू प्रोवाइड योर नोट्स फॉर रेफरेंस? माई नोट्स आर ऑन माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन सर्च इट ओवर भूमिका जैन AR331। दे यू कैन फाइंड माई नोट्स, उसमें मैंने एक पूरा जो मेरी कॉपी थी ना वो मैंने डाल रखी है। एंड रिमेंबर वन थिंग, योर नोट्स नीड नॉट बी परफेक्ट। अगर मैंने जैसे अपने नोट्स बनाए थे, मुझे कोई भी आर्टिकल भी अच्छा लगता था ना, मैं उसको भी अपनी कॉपी में एज इट इज न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिख लेती थी छोटा करके, बिकॉज सी दे आर फॉर योर रेफरेंस। उससे आपकी वोकेबुलरी बिल्ड होती है, उससे आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड होता है। एंड आई शो यू माई कॉपीज, आई टेल यू वेयर ऑल आई हैव यूज्ड द नोट्स दैट आई मेड, कि मैंने अपने नोट्स को कैसे यूज किया। सो दैट विल लुक फॉरवर्ड टू द सेशन। नेक्स्ट इज अ ट्रिक जो मैं आपको बोल रही थी। 2 days बिफोर मेंस आई टेल यू व्हाट आई वाज डूइंग। पहला पेपर ऐसे का होता है और मैंने 2 दिन दिए थे ऐसे को पढ़ने के लिए। सो आई जस्ट सैट विथ माई कॉपी, आई मेड अ आई मेड अ डिस्टिंक्शन इन द पेज। वन साइड वॉज भूमिका, अदर साइड वॉज चैट जीपीटी, राइट, और एनी एआई टूल दैट यू यूज। अभी चैट जीपीटी मेरे टाइम पे वो बहुत पॉपुलर था तो मैं वो यूज करती थी। सो आई रोट अ पीवाईक्यू ऑन द टॉप। पीवाईक्यू इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर साल के जो पीवाईक्यूज थे ना, उसमें से मुझे जो सबसे टफ टॉपिक मिल रहा था उसको मैं टॉप पे लिखती थी। देन इन द पेज व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मैं पहले खुद से ब्रेनस्टॉर्म करती थी। सो व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग ये भी बता देती हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज नथिंग, ऑल यू हैव टू डू इज सिट विथ अ टॉपिक, सिट विथ अ पेन एंड पेपर। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितनी चीजें आ रही हैं आप लिख लो एक जगह पे, शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो, ये आपको किसी को दिखाना थोड़ी है। यू डोंट हैव टू राइट एन ऐसे, आप बस लिख लो कि इसमें मैं होती तो क्या क्या लिख रही होती। कि फॉर एग्जाम्पल मैं इंट्रोडक्शन में कौन सी स्टोरी यूज कर रही होती, या कंक्लूजन में मुझे अभी कौन सी पोएम याद आ रही है जो मैं यूज कर पाती, या फिर बॉडी के जो पॉइंटर्स हैं, जैसे ऐसे में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एंड बॉडी होता है, तो बॉडी में मैं क्या क्या थीम सोच सकती थी कि ओके मैं इसमें ये वाला एग्जाम्पल डालती, ये वाला पॉइंट डालती, या ये वाली हेडिंग डालती, या ये वाला कीवर्ड डालती। यू कैन जस्ट सिट विथ योर पेपर, एक पेज में एक साइड में आप ये सब लिखो जो आपका एग्जिस्टिंग आपका थॉट प्रोसेस है। देन व्हाट यू डू, आप एक एआई को कमांड प्रॉम्प्ट दो कि ओके नाउ गिव मी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एंड बॉडी फॉर दिस टॉपिक इन शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मेट एंड इन गुड लैंग्वेज, एंड इन गिव मी कोट्स रिलेटेड टू इट, गिव मी पोम्स रिलेटेड टू इट, एंड गिव मी द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। बिकॉज कई बार ना फिलोसॉफिकल टॉपिक्स इतने टफ होते हैं कि आपको उनका मतलब ही नहीं समझ में आता। सो गिव मी द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक ऑल्सो। एंड देन एक बार आपने एक साइड खुद से कर लिया, नेक्स्ट आप चैट जीपीटी पे वही टॉपिक सेम टॉपिक डालो। वंस यू पुट द सेम टॉपिक ना, व्हाट यू कैन डू इज, सेम आपने डाला, then it will give you some output, and trust me AI is very trustworthy in that regard। वो अच्छे examples देता है, अच्छी vocabulary यूज करता है, and it gives you know good filler points जो आपको अकेले खुद की मेहनत से बहुत टाइम लग जाएगा। सो ऐसे आप दोनों चीजों को पैरेलली रखो, आपका थॉट प्रोसेस और उसमें से आपको ऑनलाइन क्या क्या एडिशन मिल पा रहा है, फिर आप अपने ही थॉट्स में आपके बहुत सारे थॉट्स कोइंसाइड करेंगे एआई से, तो अपने ही थॉट्स को आप ऐड ऑन करते जाओ कि अच्छा ठीक है, ये जो मेरा थॉट था ना जो मैं सिंपल लैंग्वेज में सोच रही थी, उस चीज को ना मैं इस वर्ड के साथ बेटर बना सकती हूँ। सो दिस वॉज वॉट आई वॉज एक्चुअली डूइंग 2 days बिफोर मेन्स एग्जाम। एक तरफ मैं खुद का लिख के बैठती थी, एक तरफ मैं एआई पे प्रॉम्प्ट देती थी और वो मुझे देता था, एंड फिर मैं दोनों का मिला के देखती थी कि अच्छा ठीक है मैं इसको इस तरीके से भी तो कन्वे कर सकती थी। नाउ जस्ट टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कई लोगों की आदत होती है एआई की इतना यूज करते हैं ना दैट पीपल जस्ट गो डायरेक्टली टू एआई, कि अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं एंड दे विल डायरेक्टली जस्ट पुट द टॉपिक टू एआई। प्लीज डोंट डू दैट, आई टेल यू व्हाई। एग्जाम में ना अगर आप एआई से लिख रहे हो तो बहुत सारे लोग एआई से लिख रहे हैं, यू आर द ओनली वन हु इज यूजिंग एआई। सो उससे है ना आपका जो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस होता है ना वो कहीं ढक जाता है, एंड जो चीज आप नेचुरली नहीं लाते ना, एग्जाम के प्रेशर में क्या होता है, जब आपको मेंस के हॉल में बैठ के प्रेशर आता है तो जितनी आपकी रटी रटाई चीजें होती हैं, एंड दिस इज नॉट जस्ट द केस विथ मी, इट्स विथ एवरी टॉपर, आपका नेचुरल स्टाइल ही बाहर आता है, आपकी रटी रटाई चीजें नहीं बाहर आती। सो
So I'll just tell you something. हाँ, तो in that case now what you should do is आप खुद का थॉट प्रोसेस अपनाओ, खुद का थॉट प्रोसेस से लिखो और उसको एनरिच आप एआई के थ्रू करो. इन दैट वे यू वोंट बी वरिंग कि ओके मैं सही लिख रही हूँ कि गलत लिख रही हूँ, मैं कैसा लिख रही हूँ, बिकॉज वो आपका नेचुरल आएगा. राइट. सो दैट वाज द हाउ पार्ट कि आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द सोर्सेज. या जैसे कि मैंने आपको बताया, सोर्सेज आर द सेम. यू शुड टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम टॉपर्स कॉपीज, उनको आप लिख लो, कोट्स निकालो, न्यूज़पेपर से निकालो. देन देयर इज अ वेरी गुड वेबसाइट कॉल्ड द बेटर इंडिया. राइट, द बेटर इंडिया करके एक वेबसाइट है, उसका एक इंस्टाग्राम पेज भी चलता है. सो द बेटर इंडिया पे आप जाओगे ना, यू विल फाइंड टन्स ऑफ एग्जाम्पल्स, सिविल सर्वेंट्स के, केस स्टडीज के, बेस्ट प्रैक्टिसेस के. वो आपके हर जीएस पेपर में काम आएंगे. So you just go through these websites like the Better India. You can just search it over the internet. It's a very good website. तो उसमें से आप एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर लो. एक बार एग्जाम्पल लिस्ट बनाओगे ना, वो आपको मल्टीपल पेपर्स में काम आएगा. एंड व्हेन दैट कम्स टू यूज, व्हाट यू कैन डू इज ऐसे करके लिख लो. देन देर इज नीति आयोग की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं. और एक अवार्ड होता है, एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड. इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, वो ये अवार्ड्स देता है यूजुअली. सो व्हाट यू कैन डू इज ऐसे करके आप खूब सारे एग्जाम्पल निकाल लोगे, अच्छे अच्छे खुद का नोट्स बना लोगे, एंड यू विल बी डन विथ योर सोर्सेज. ट्रस्ट मी, इतना सोर्सेज की जरूरत होती ही नहीं है ऐसे में. इट्स जस्ट योर मेमोरी, योर वोकेबलरी एंड थिंग्स लाइक दैट. राइट. Moving on, we have, okay, right. Now that we have talked about why essay paper, how essay paper, we will now move on to the structuring of the essay paper. आपको एक ऐसे लिखना है अक्रॉस 13 to 15 पेजेस, इतना हर किसी को लिखना पड़ता है. अब आप, हर ऐसे का 3 पार्ट होता है. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज बॉडी, थर्ड इज कंक्लूजन. एंड इसके बीच में आपके एक फिलर्स आते हैं. आई टेल यू व्हाट आर फिलर्स. जैसे खाने में ना, खाने में आप जिसको नमक मसाला पसंद है ना, वो ऊपर से थोड़ा सा डाल लेता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्डिमेंट्स. वैसे ही आपका ऐसे पेपर बेस लेवल होता है ना, उसमें आप कुछ कुछ चीजें अगर ऐड कर दोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम एलिवेटेड. ठीक है, फिर वो आपका जो 100 पे ऐसे अटक रहा होगा ना, अगर आपने ये चीजें ढंग से कर ली तो इट विल मूव ऑन टू 120 प्लस, क्योंकि वो आपके ऐसे को किसी सेकेंड पर्सन के ऐसे से बहुत डिफरेंट बनाएगा. सो आई कॉल देम फिलर्स. सो फिलर्स में मैं आपको बताती हूँ क्या आता है. फर्स्ट विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन. सो सी, इंट्रोडक्शन क्या होता है किसी भी चीज का. वेन एवर यू मस्ट हैव रेड अ बुक, बुक में ना डायरेक्टली किसी भी टॉपिक पे जंप नहीं किया जाता है. पहले उसका कंटेक्स्ट बनाया जाता है कि ओके ठीक है, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक का क्या रिलेवेंस है. सिमिलरली ऐसे पेपर में इंट्रोडक्शन क्या होता है, इट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन. ट्रस्ट मी ऑन दैट, लोगों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने में आती है. और जहां वो डिफिकल्टी आती है ना, दे कुड नॉट मूव ऑन टू फर्दर पेजेस, बिकॉज सबसे पहले आपको एक पेज का इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा. वो अगर आपने खराब किया ना, तो आप खुद भी सोचो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एग्जामिनर, अगर आपने वो खराब किया तो आपके आगे के ऐसे में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा. एंड दे हैव टू रीड 13 पेजेस, देन दे अगेन हैव टू रीड 13 पेजेस फॉर अनदर ऐसे, एंड दे चेक अराउंड 20 कॉपीज अ डे. तो कोई भी आपको क्यों मार्क्स देगा अगर आपको उसको बिगिनिंग ही अच्छी नहीं लगेगी तो. सो इंट्रोडक्शन बिकम्स अ टैकी पार्ट फॉर मोस्ट पीपल. नाउ आई टेल यू व्हाट इंट्रोडक्शन आप क्या कर सकते हो. इंट्रोडक्शन मेरी अलग अलग स्टाइल्स थी. एंड कई लोग क्या करते हैं, अगर आपने कुछ टॉपर्स कॉपी से गो थ्रू हुए हो गया, कुछ भी खुद भी ऐसे लिखे होंगे, कई लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी को अच्छे वर्ड्स में एक इंट्रोडक्शन बना देते हैं. एंड लेट मी टेल यू, इंट्रोडक्शन शुड डायरेक्टली कनेक्ट टू द टॉपिक. अगर आपका इंट्रोडक्शन आपके टॉपिक से कनेक्ट नहीं कर रहा ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप हवा में बातें कर रहे हो, आपसे पूछा कुछ और गया है, आप लिख कुछ और रहे हो, और आप बहुत फार फेच्ड लिखोगे. सो इट डजंट वर्क दैट वे. इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए ना कि जो आपसे पूछा गया है, जो आपको टॉपिक दिया गया है, वो डायरेक्टली हिट करे. एंड आई जस्ट शो यू अ फ्यू ऑफ माई शीट्स जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखे थे, सो यू विल गेट टू नो कि अच्छा ठीक है ऐसे लिखा जाता है. नाउ सी, इंट्रोडक्शन की कई सारी स्टाइल्स होती हैं. वन इज जो मैंने बताया कि जो बहुत लोग फॉलो करते हैं, एग्जाम्पल से ही इंट्रोड्यूस करना कि ठीक है आपने बताया कि अच्छा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उसमें गांधी जी ने ट्रुथ का साथ दिया था, ही पुल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसे करके आपने 2 पैराग्राफ लिख दिया. एंड जस्ट एंड देन से सपोज यू से कि ओके दैट्स हाउ द ट्रुथ स्टैंड्स आउट, या ट्रुथ नोज नो कलर. ये लास्ट ईयर के ऐसे का टॉपिक है जो मैं बता रही हूँ. सो एक ये होता है.
नाउ आई टेल यू, पहली चीज तो गांधी जी वाला एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड शीट में यही एग्जाम्पल मिलता है। तो जो आपको एक आध एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाला होता है ना, वो एग्जामिनर आपको नहीं देगा, बिकॉज वो यही चीज पढ़ पढ़ के बोर हो गया होगा। सेकेंड थिंग, ये स्टाइल है ना, ये बहुत लोग फॉलो करते हैं। सो यू माइट चेंज इट। नाउ आई टेल यू व्हाट आई डिड। मैं क्या करती थी, दिस वाज वन स्टाइल। सेकेंड स्टाइल वाज कन्वर्सेशनल स्टाइल। नाउ व्हाट इज अ कन्वर्सेशन, लाइक यहाँ मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, यहाँ मैं अगर जोर जोर से कुछ चिल्लाने लगूं तो आप सुनोगे, आप कुछ अपने तरफ से बोलोगे तो मैं सुनूंगी। ऐसे ही काम आप पेपर पे कर सकते हो ना। व्हाट डू यू डू ऑन पेपर, पेपर पे ना आप ऐसे लिखो इंट्रोडक्शन, जैसे आप बात पढ़ने वाले से बात कर रहे हो, राइट। जैसे आप उससे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछो कि ओके, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, तो जो वो पढ़ेगा ना तो उसको ऐसा लगेगा आप उससे बात कर रहे हो। नेक्स्ट इज अनदर स्टाइल कॉल्ड स्टोरी फॉर्मेट। नाउ मुझे स्टोरीज बहुत पसंद थी, तो मैं ना ऐसे कहानी सुनाना शुरू कर देती थी कि ओके, इमेजिन दिस, इमेजिन दैट, इमेजिन इमेजिन समथिंग एल्स, नाउ थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस, ऐसे करके मैं एक पूरी कहानी सुना देती थी इन माई इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। वो 2 पेजेस में हो जाती है, एंड सी यार, किसी को भी आप कहानी सुनाओगे ना, दैट पर्सन वुड बी इंटरेस्टेड ऑलरेडी। और आपने फर्स्ट 2 पेजेस में अगर आपने एग्जामिनर का इंटरेस्ट ग्रैब कर लिया ना, इट विल गो लाइक केक वॉक फॉर यू। फिर वो पूरा ऐसे ढंग से पढ़ेगा और वो ढंग से मार्क्स गेन करेगा, राइट। थर्ड वॉज से फॉर एग्जाम्पल पोएट्री फॉर्मेट। अभी यहाँ पे मैं वो जो बोल रही थी ना कि आप कुछ कोट्स कलेक्ट करके रखो, कुछ पोएम्स कलेक्ट करके रखो, कुछ फेमस स्पीचेस, जैसे स्वामी विवेकानंद की बहुत फेमस स्पीच थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, राइट। तो उसके कुछ लाइंस कलेक्ट करके रखो। ऐसी चीजें आप जब कलेक्ट करके रखोगे ना, और डायरेक्टली उनको ब्लैक पेन से कोट में डालो, उनको लिख दो और ऐसे कोट कर दो, और नीचे उस जिनके भी वो पोयम है या जिनकी वो स्पीच है उनका नाम लिख दो। And then you go on with your essay कि now with these words say Pandit Jawaharlal conveyed the India's freedom, tryst with destiny, things like that, ऐसे करके लिखोगे ना, तो अपने आप उनको कोई क्रेडिबिलिटी दिखेगी कि भाई some great person has said this, and the person writing this essay knows this, and उसने कितने अच्छे से लिंक किया है टॉपिक में, right? So that becomes another style, राइट। सेकेंड इज इंट्रोडक्शन शुड फिट वेरी क्लोजली टू द टॉपिक। एंड अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना स्टाइल्स, ये मैं अभी आपको अपनी शीट्स के थ्रू दिखाऊंगी कि अच्छा मैंने कैसे किया था। सो यू विल जस्ट कनेक्ट विथ इट कि अच्छा मैम क्या बोल रही है, राइट। थर्ड इज डोंट मेक योर इंट्रोडक्शन बोरिंग। अभी बहुत लोगों का ये मिथ होता है कि मैम हमारी तो वोकेबलरी अच्छी नहीं है, या अगर हम इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं तो हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। सी, इट्स नॉट अ इंग्लिश पेपर, इट्स एन ऐसे पेपर, राइट। तो ये मिथ पहले तो ब्रेक कर दो कि अगर हमको बहुत फैंसी वर्ड्स नहीं आते हैं तो हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दैट्स नॉट द केस। इफ यू लुक एट लास्ट ईयर्स टॉपर हर्षिता गोयल्स कॉपी, हर्षिता मैम क्या करती हैं, शी यूजेस वेरी सिंपल लैंग्वेज, शी जस्ट कन्वेज गुड थिंग्स। वो ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में अच्छी चीजें बता देती हैं, अच्छे पॉइंट्स बता देती हैं। सो ये तो मिथ हटा ही दो कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। थोड़ा बहुत आपको मे बी ग्रामर इंप्रूव करना पड़ सकता है कि वॉज या वर्ब में कंफ्यूज हो जाते हो, या इज या वॉज में कंफ्यूज हो जाते हो, वो चीजें ना लिखते लिखते आ जाती है, वो आप किसी के भी साथ बैठोगे ना, वो आपकी करेक्ट करा देगा। बट हैंड राइटिंग ऑल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर सम पीपल। आप थोड़ी सी हैंड राइटिंग इंप्रूव कर सकते हो क्योंकि वो दिखने में प्रेजेंटेबल लगता है। बट डोंट वरी टू मच अबाउट दीज थिंग्स कि अब हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है या हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दैट्स नॉट द केस, राइट। तो ऐसे करके आप सिंपल लाइन्स दो, भले बहुत फैंसी लैंग्वेज नहीं दो अगर नहीं आ रही है तो, बट चीजें एकदम ऑन पॉइंट कन्वे करो और अपने एग्जाम्पल्स यूनिक रखो। लाइक इफ यू लुक एट माई ओन नोट्स ना, जो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, यू विल सी कि हाँ ओके, मेरे जो एग्जाम्पल्स है ना वो ज्यादा कहीं से नहीं उठाए, बिकॉज मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी। सो मुझे उसमें जो रोज का नया मिलता था मैं लिख लेती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि मेरे एग्जाम्पल्स किसी के भी पास नहीं रहते थे, बिकॉज मोस्ट पीपल वेंट दोस जो जेनेरिक एग्जाम्पल्स। सो दैट इज वॉट यू कैन डू। नाउ जो मैं बातें कर रही थी कि अच्छा ये बात करने वाला फॉर्मेट लगाओ, स्टोरी फॉर्मेट लगाओ, आई जस्ट शो यू इन माई ओन शीट्स। ये एसेज मैंने लास्ट ईयर मेंस के पहले लिखे थे, एंड आई जस्ट शो यू हाउ इट वर्कड आउट फॉर मी, राइट। कैन यू सी अ फ्यू शीट्स ऑन माई स्क्रीन राइट नाउ? आप लोगों को दिख रही है क्या? समवन कैन कंफर्म ओवर चैट। कैन यू सी द शीट्स ओवर हेयर? कुछ शीट यूपीएससी टाइप का लिखा है, राइट, यू कैन सी इट, राइट, ओके। सो फर्स्ट शीट, ओके,
ये मैंने एक ऐसे लिखा था, इसका आप टॉपिक ऊपर देख रहे हो, आइडेंटिटी इज बोथ अ पर्सनल जर्नी एंड अ सोशल कंस्ट्रक्ट, राइट? आइडेंटिटी इज बोथ अ पर्सनल जर्नी एंड अ सोशल कंस्ट्रक्ट। दिस इज अ फिलोसॉफिकल टॉपिक, बिकॉज ये कोई ऐसा जीएस का चीज नहीं है कि अच्छा क्लाइमेट चेंज पे आपको पूछा है या इंटरनेशनल रिलेशंस पे पूछा है। यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट आइडेंटिटी। अभी एनी ऑफ यू, आइडेंटिटी क्या होती है ये सोचो। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब हम कौन है, हु आर वी, वाई आर वी हेयर, वेयर डू वी बिलोंग टू, हमारी बिलोंगिंग क्या है, थिंग्स लाइक दैट। अभी इसमें अगर आप यूजुअल लोगों के इंट्रोडक्शंस देखोगे ना, दे विल दे विल जस्ट फंबल ओवर देयर, बिकॉज उनको समझ नहीं आएगा कि आप ऐसे टॉपिक में आइडेंटिटी का क्या डाला जाए। तो आप इसमें अगर देखोगे, मैंने स्टार्ट किया है, आई थिंक यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, आई जस्ट जूम इन वन सेकेंड। या, if you can see it on the screen, I have written Plato, Socrates, religious philosophers, and a common person carrying on with their day and suddenly hitting a slump. All have been hit by a common question: who am I? What is my place in this world? Now, just look at this introduction. ये जो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई सदियों से जो अपन अभी बात कर रहे थे, क्या आपके दिमाग में दिन भर पढ़ते पढ़ते ये नहीं आता कि भाई हम कौन हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी है? तो ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, सदियों से महान थिंकर्स भी यही चीज पूछ रहे थे, भाई हम कौन है, हमारी इस दुनिया में जगह क्या है, यही सब तो पूछ रहे थे। तो इतनी सिंपल चीज जो मैं बहुत इजीली कर रही थी, वो मैंने आपको डायरेक्टली इस स्क्रीन पे बता दी, मैंने डायरेक्टली लिख ही दी कि ओके, प्लेटो, सोक्रेटिस, थिंग्स लाइक दैट। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द स्क्रीन। इज समवन ट्राइंग टू पुट इन समथिंग ओवर देयर? नो? ओके, ओके। या, सो उसमें आप देखो, प्लेटो, सोक्रेटिस एक्सेट्रा। मैंने ऐसे करके, जो बात मैं आपसे अभी कर रही थी कि भाई हमको दिन भर में आता है फील कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कौन है इस दुनिया में, हमारी क्या वैल्यू है, ये सब चीजें ये हमेशा हमेशा से पूछी जा रही है। वही चीज मैंने एक कन्वर्सेशन के फॉर्म में लिख दी कि ओके, ये क्वेश्चन तो बचपन से है कि हु एम आई, व्हाट इज माय प्लेस इन दिस वर्ल्ड, राइट? So it was my introduction, and somehow na the examiner who checked this, like the my mentor who checked this, that person said कि भाई this is a very good theme, मतलब ये ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने किसी और का नहीं पढ़ा, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स कि किसी और का आपके जैसा सिमिलर नहीं हूँ, राइट? आगे पढ़ो आप। दिस क्वेश्चन हैज बेफल्ड जनरेशन ऑफ philosophers, researchers and lifestyle gurus alike. It has ignited debates beyond ends, turned people into timeless pursuits, made monks undertake days of meditation to find the answer to the question of identity. See, the exact thing that I was talking about ना, कि ये तो बचपन से चला आ रहा है, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं कि भाई हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों इस दुनिया में भाग रहे हैं, ये हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, राइट? तो वही चीज मैंने एज अ रिटन फॉर्मेट कन्वे कर दी। एंड ये मैंने भी नोटिस किया था, दिस इंट्रोडक्शन वाज नॉट यूज्ड बाय एनीबॉडी, एंड आई विल टेल यू वेयर इट केम फ्रॉम। न्यूज़पेपर में एक दिन इंडियन, अगर आप में से कोई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता होगा ना, तो उसमें एक स्पीकिंग ट्री करके कॉलम चलता है। उस स्पीकिंग ट्री कॉलम में एक आता है हर हफ्ते, मतलब उसमें भी अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ रोज रोज आता रहता है इन्हीं थीम्स पे। तो उसमें किसी और चीज के ऊपर ऐसे करके आया था कि प्लेटो, सोक्रेटिस एंड जनरेशन ऑफ फिलोसफर्स आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो मुझे वही लाइन हिट कर गई थी, मैंने अपने नोट्स में लिख ली थी, एंड आई यूज्ड इट एग्जैक्टली हियर, मतलब इस टॉपिक से लिंक करके। तो दैट्स हाउ यू यूज नोट्स। अगर आप मेरे नोट से भी गो थ्रू होगे ना, यू विल नो कि भाई ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है नोट्स, राइट? नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, इट इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। ये भी एक ऐसे का टॉपिक है, ठीक है? दिस इज सेकेंड स्टाइल। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं एक कहानी सुना रही हूँ, आई एम यूजिंग द स्टोरी फॉर्मेट। ये ऐसे भी मैंने ही लिखा है, मेंस के पहले ही लिखा है। सो एज किड्स वी मस्ट हैव प्लेड विथ अ पजल गेम। The pieces of puzzles are meant to be solved. There is only one right way of pieces to align so as to complete the picture. All we must do is to find that one right order. ये कहानी सुनाने जैसी बात हो गई कि जैसे मैं आपसे बातें करके आपको कहानी सुना रही हूँ कि भाई हम में से सबके पास छोटे में पजल वाला गेम रहा होगा। हम सबको पजल को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, एक ही फॉर्मेट में वो क्रॉस बोर्ड फिट होते हैं, राइट? बट हमने क्या, इसमें नीचे आप पढ़ो, वी मस्ट हैव ऑल्सो प्लेड विथ बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट? Random pieces meant to be arranged randomly out of one's imagination to create what one desires.
ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, आप बचपन में गेम्स तो सबने खेले होंगे ना, ब्लॉक होते हैं, कैसे भी जोड़ दो, आड़े टेढ़े जोड़ दो, कुछ ना कुछ बन ही जाता था, राइट? तो मैंने फिर इसको कैसे गो थ्रू किया, द गेम्स वी प्लेड एज चिल्ड्रेन नीड टू शेप अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एज एडल्ट्स. द रियलाइजेशन हिट्स इन that life is not a puzzle to be solved but rather a building to be built. ये लाइन आप देखो, इसको मैंने अंडरलाइन किया है. नाउ लुक एट द टॉपिक, लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, इट इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ. मैंने एक पजल की एनालॉजी लेके और एक बिल्डिंग ब्लॉक की एनालॉजी लेके अपना पूरा टॉपिक जस्टिफाई कर दिया. एंड अगेन ये कंक्लूजन भी ना किसी में, ये इंट्रोडक्शन भी किसी और ने नहीं लिखा था. सो इट विल इजिली गिव मी एक्स्ट्रा 3-4 मार्क्स डेफिनेटली, क्योंकि ये और किसी ने नहीं लिखा है. So I believe I could convey my point. एक बार आप chat box में लिख दो please if the point is clear to you what I am trying to say over here. Is it clear? मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या कन्वे करने की कोशिश करी कि अच्छा एक स्टाइल ये थी, द सेकंड स्टाइल इज दिस वन. यस, ओके. आप लोग एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो सो दैट आई नो कि द सेशन इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, यू आर गेटिंग द पॉइंट. ओके, कूल. टू पीपल हैव रिटन, ओके. ठीक है. नाउ दिस वुड बी द थर्ड थर्ड वन, राइट? ये तीसरा स्टाइल है. इसको मैं बोलती हूँ बैंगर स्टाइल. बैंगर में क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर में आप हेडलाइंस पढ़ते हो ना, सपोज धोनी लिफ्ट्स द वर्ल्ड कप, राइट? ऐसी कुछ हेडलाइंस जब 2011 वर्ल्ड कप जीते थे, तो दैट्स हाउ न्यूज़पेपर में आई थी. अब मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे पापा बहुत शौक से पढ़ते थे, राइट? तो जैसे न्यूज़पेपर में चीजें नहीं आती कि कुछ चला जा रहा है, हेडलाइंस टाइप की. दिस इज वन स्टाइल ऑफ राइटिंग, इज क्रिएटिंग अ जनरेशन ऑफ रेस्टलेस माइंड्स. ये है हमारा टॉपिक. इट इज अ वेरी गुड टॉपिक, इट इज वेरी लिंक टू प्रेजेंट जनरेशन कि भाई आजकल सबको इंस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होता है, उसकी वजह से हम रेस्टलेस होते हैं. दिस इज द टॉपिक. अभी आप इसमें देखो, अभी इसमें यूजुअली जो मैंने ऐसे पढ़े थे उसमें लोगों ने क्या किया था, उसमें लोगों ने कुछ फैक्ट से स्टार्ट किया था कि भाई आजकल लोग इतना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, आजकल लोग इतने ज्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सोशल मीडिया पे रहने से. तो उनका ऐसे था, जीएस जैसा लग रहा था, इट डिड नॉट लुक डिफरेंट. तो अभी इसमें मैंने क्या किया था, सी रीड इट. Picture posted, the weight kept on. Hands fidgeted around mobile phone. 1 minute, 2 minute, 3 minute. Maybe the picture was not good enough. Maybe I should delete it. What else should I post to gain traction? And then buzz. Likes flew in, two shares multiplied to four. मैं एक पूरा सिनेरियो दिखा रही हूँ जो अपनी लाइफ में डेली होता है. अगर आप में से कोई सोशल मीडिया चलाता होगा और किसी को उसका एडिक्शन होगा तो दे वुड नो कि भाई कैसे ही अपन पिक्चर पोस्ट करते हैं ना, अपन हर 2 मिनट में चेक करते हैं कि भाई किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, किसी ने शेयर किया क्या, किसी ने देखा कि नहीं देखा, या लाइक्स कम क्या आए या लाइक ज्यादा क्यों आए. ठीक है, ऐसा. तो इसमें आप एक चीज देखो, मैंने वही सिनेरियो बताया कि भाई हैंड्स फिक्स्ड अराउंड मोबाइल फोन, मतलब हमारे हैंड्स फोन के अराउंड घूम रहे थे, राइट? तो पहले हम यही सोच रहे थे कि शायद ना हमारे जब तक लाइक्स नहीं आए थे तो मे बी द पिक्चर वॉज नॉट गुड इनफ. इट्स लाइक इंटरनल डायलॉग हो रहा है. ठीक है, मे बी आई शुड डिलीट इट. बट देन जब लाइक्स फ्लो इन, इसमें अगर आप नीचे देखो तो लाइक बटन वॉज हिट, सो वॉज द डोपामाइन इन द ब्रेन. तो जिन लोग ने भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो उनको पता चला डोपामाइन हिट मतलब जब हमको ब्रेन में कुछ अच्छा लगता है बिकॉज समथिंग आउटसाइड इज गुड, उसको डोपामाइन हिट कहते हैं. तो मैंने लाइक बटन के हिट को डोपामाइन हिट से कनेक्ट कर दिया. सडनली द पिक्चर बिकेम बेटर. अब फिर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बता रही हूँ, ये आप इस साइड पे देखो, राइट साइड पे. अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स डिड नॉट लाइक इट, द नेबर्स किड नेक्स्ट डोर डिड नॉट रिप्लाई. ये वही ना इंटरनल डायलॉग में एक पेपर पे शो कर रही हूँ. तो फिर अब इससे क्या हो रहा है, हमारा स्पाइरल कंटिन्यू हो रहा है कि भाई इसने तो लाइक नहीं किया, इसने तो कमेंट नहीं किया. एंड इससे मेरा पूरा टॉपिक जस्टिफाई हो गया कि इट इज नॉट मेयर फिक्शन, इट इज द रियलिटी ऑफ अवर जनरेशन. A generation chasing instant validation on fuel of likes, shares, and comments. So it is therefore rightly said, instant validation is a new addiction of our age. जो उन्होंने टॉपिक दिया था, look at the left side, the pursuit of instant validation is creating a generation of restless minds. मैंने वो रेस्टलेसनेस को पूरे पेपर पे ही दिखा दिया. सो दिस इज अनदर बैंगर स्टाइल दैट आई वाज रेफरिंग टू. सो एक ये स्टाइल हो गया. आई बिलीव द पॉइंट इज कन्वेड ओवर हियर कि ठीक है, ऐसे आप अलग अलग इंट्रोडक्शन स्टाइल्स ट्राई करो, बिकॉज ऐसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे. अगर आप जेनेरिक जाओगे ना तो जेनेरिक ही मार्क्स आएंगे. सबको 100 मिलते हैं अराउंड, आपको भी 100 मिलेंगे. अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करोगे ना, कुछ नया, इन कॉपी से रेफरेंस ले लो कि भाई मेरे पास नेक्स्ट कोई टॉपिक आएगा तो मैं ऐसे जाऊंगी. सो दैट इज हाउ इट वुड गो, राइट? इज द इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है? कैन समवन प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स?
आई सी पीपल हैव लेफ्ट. ओके, ठीक है. दे मस्ट हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू. ओके, यस मैम, ठीक है. मूविंग ऑन. नेविगेटिंग essay paper body. बिगेस्ट प्रॉब्लम पीपल फेस इन essay पेपर इज राइटिंग 12 पेजेस. आपका एक पेज का इंट्रोडक्शन तो आप किसी तरह लिख लोगे, कंक्लूजन भी लास्ट का आधे पेज का एक पेज का लिख ही लोगे, जो बताया वही पूरा लिख लोगे. पर आप बचे बीच के 12 पेज कैसे फिल करोगे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज जीएस में हमको हर क्वेश्चन अलग होता है और हर में 2 पेज भरने पड़ते हैं या 3 पेज भरने पड़ते हैं. सेम विथ ऑप्शनल, मैक्सिमम 4 पेज भरने रहते हैं. But with essay paper, it gets very difficult to write 12 pages unless you have good command over the things you should write, right? So, अब हम पॉइंटर्स कैसे जनरेट करें? मैम हम 12 पेज तक क्या लिखें? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. सो फर्स्ट इज जीएस सिलेबस अप्रोच. First is, what approach you can do is you can write every GS paper in your mind. Yeah, so where were we? Navigating essay paper body. So आपको क्या करना है? आपको 12 पेज के लिए कंटेंट चाहिए है ना? सपोज कोई भी टॉपिक है, अब जैसे आइडेंटिटी वाला टॉपिक जिसका भी हमने इंट्रोडक्शन देखा. आप क्या करो, GS1 का सिलेबस सोचो कि यार पास्ट में लोग कैसे अपनी आइडेंटिटी दिखाते थे. पास्ट में आपको याद आएगा कि आर्ट एंड कल्चर में लोग अपनी आइडेंटिटी सिर्फ पेंटिंग से दिखाते थे, फैमिली वैल्यूज के थ्रू दिखाते थे. देन सोसाइटी याद करो. सोसाइटी में लोग कैसे अपनी आइडेंटिटी, सोसाइटी में आइडेंटिटी ही तो बेस फीचर है. आपकी एक आइडेंटिटी से ही तो आपका ग्रुप बनता है, आपके ग्रुप से ही तो आपकी सोसाइटी बनती है. तो एक सोसाइटी का पॉइंट निकल आया. अब पॉलिटी से सोचो, पॉलिटी से क्या आइडेंटिटी का एग्जाम्पल निकल सकता है? पॉलिटी से आइडेंटिटी का एग्जाम्पल निकलेगा कि ठीक है, एक नेशन की आइडेंटिटी कैसे शेप होती है, एक नेशन कैसे बनता है. हम कैसे बोलते हैं कि हम भारत के निवासी कर सकती हूँ, बट जस्ट यू नो टेलिंग कि जब हमारी आइडेंटिटी अच्छी होती है, व्हेन वी हैव कॉन्फिडेंस ओवर अवरसेल्व्स, हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है. ऐसे करके आपका एक पॉइंटर निकलेगा. नाउ एथिक्स तो पूरा आइडेंटिटी पे ही बेस्ड है. इफ यू लुक एट द एंटायर एथिक्स पेपर, इट इज बेस्ड अपॉन आइडेंटिटी. एथिक्स से आप आइडेंटिटी के कितने निकाल सकते हो कि हमारी आइडेंटिटी हमारे मोरल से बनती है, हमारी आइडेंटिटी हमारे वैल्यूज से बनती है, हमारी आइडेंटिटी हमारे प्रिंसिपल से बनती है. दिस 3 आर डिफरेंट थिंग्स. बाय द वे, आप एथिक्स में पढ़ोगे कि ये 3 अलग अलग चीजें होती हैं. तो दैट्स हाउ आइडेंटिटी इज बिल्ट. फिर आप एग्जाम्पल सोचो कि अच्छा आइडेंटिटी किस किस ने, कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट ही वाज इन, उसने और किसने आइडेंटिटी बनाई है. हम एज ह्यूमंस डेली अपनी आइडेंटिटी ही तो चेस कर रहे हैं. हम क्यों इस एग्जाम को चेस कर रहे हैं? बिकॉज हमको एक आइडेंटिटी चाहिए दैट वी आर सिविल सर्वेंट सर्विंग दिस नेशन. सो थिंग्स लाइक दिस, ऐसे करके आपके बहुत सारे पॉइंटर्स निकलेंगे, राइट? सेकेंड इज, और आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे करके एग्जाम्पल्स निकालो. कुछ ना जीएस जैसे टॉपिक्स होते हैं, उनके जितने एग्जाम्पल निकालोगे ना, उन एग्जाम्पल से आप पॉइंट बनाओ. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आया था द बेस्ट लेसन ऑफ लाइफ आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस. तो अब इसके एग्जाम्पल्स कलेक्ट करो, किस किसने बिटर एक्सपीरियंसेस झेले हैं. महात्मा गांधी ने झेला, उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था बिकॉज ही वॉज इन अ वाइट कंपार्टमेंट. तो ठीक है, उससे उन्होंने कैसे बेस्ट लेसन सीखे कि भाई हमारी एज अ नेशन की आइडेंटिटी होनी चाहिए. दिस वुड बी योर एग्जाम्पल एंड दैट वुड बी योर पॉइंट. सेकेंड, और किसने बेटर एक्सपीरियंसेस झेले हैं? अरुणिमा सिन्हा, शी वॉज अ क्लाइंबर ऑफ माउंट एवरेस्ट. उनका ट्रेन से एक्सीडेंट होकर उनके पैर कट गए थे, स्टिल शी क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. तो उससे उन्होंने क्या लेसन सीखा? परसिवरेंस का लेसन सीखा. और किसने बेस्ट लेसन सीखे बिटर एक्सपीरियंसेस से? आप अपना खुद का डालो कि एज ह्यूमंस ऑल्सो वी फेस ट्रबल एवरी डे येट वी कम आउट स्ट्रॉन्गर, कि भाई हमको फेल होके भी उठना है, ऐसे करके. सो दिस इज वन फॉर्मेट, राइट? नेक्स्ट इज, ये आपका एग्जाम्पल वाला फॉर्मेट हो गया. थर्ड इज कंसेंट्रिक सर्कल्स अप्रोच. नाउ व्हाट इज कंसेंट्रिक सर्कल? एक ऐसा गोला, उसके बाहर एक और गोला, उसके बाहर एक और गोला. अभी गोला क्या होते हैं, आई टेल यू, इट इज अ वे ऑफ कन्वेइंग. आप एक इंडिविजुअल से स्टार्ट करो. इंडिविजुअल के लिए आइडेंटिटी क्या है, फैमिली के लिए आइडेंटिटी क्या है, सोसाइटी के लिए आइडेंटिटी क्या है, देन नेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है. ऐसे करके ना आपके पूरे पैराग्राफ के फ्लो अपने आप बनते जाएंगे. फिर वल्नरेबल सेक्शन पे आओ, विमेन के लिए आइडेंटिटी क्या है, से डिसेबल पीपल के लिए आइडेंटिटी क्या है. एलजीबीटी क्यू का इशू इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी. उनका तो पूरा इशू ही उनकी आइडेंटिटी चेस करने पे बेस्ड है, जो समाज नहीं मान रही है, समाज उसको स्टीरियोटाइप कर रही है. ऐसी चीजें आप लिखते जाओ, प्रैक्टिस करो, अपने आप पॉइंट्स निकलेंगे. और निकल जाएंगे ना, आपके पास 10 पॉइंट भी आ गए ना, आपके 10 पेजेस आराम से फिल हो जाएंगे. एक पैराग्राफ पे अपना पॉइंट देना, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसका एग्जाम्पल दे देना. दैट्स हाउ इट वुड गो, राइट? राइट. नेक्स्ट इज टेम्पोरल अप्रोच. टेम्पोरल क्या होता है? कोई चीज पहले कैसी थी, पास्ट में कैसी थी,
प्रेजेंट में कैसी है, फ्यूचर में कैसी है, टाइम पीरियड अप्रोच बोलते हैं इसको। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शन, बॉयज विद डिमांड्स टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ये शायद 2023 के पेपर में पूछा गया था या 2024 के पेपर में पूछा गया था, आई एम नॉट श्योर, बट ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें मैंने कैसे टेम्पोरल अप्रोच लगाया था, भाई पुराने जमाने में देख लो, पुराने जमाने में जब आप बहुत पुराने जमाने में जाओगे वेदास के टाइम पे, तब इतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। लड़कियां भी बाहर के काम करती थी, लड़कियां भी घुड़सवार थी, लड़कियां भी मिलिट्री में थी, विमेन हैड इक्वल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, सो डिड मेन। मेन भी हाउस होल्ड के काम में सपोर्ट करते थे, खाना ढूंढने जाते थे, थिंग्स लाइक दैट। सोसाइटी थोड़ी आगे बढ़ी, थोड़ा सा पहले टाइम पे जाओ, गर्ल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ गए। दे वर केप्ट बिहाइंड द किचन, दे वर केप्ट इन द हाउस होल्ड ओनली। लड़कों को बोला गया कि भाई तुमको तो घर के बाहर के ही काम करने हैं, राइट। फिर आप आओ आज के टाइम पे, आज के टाइम पे हम देखते कि रेस्ट्रिक्शंस थोड़े कम हो रहे हैं, बट अभी भी ना, अभी भी आप देखो, अभी भी भले विमेन बाहर जा रही है काम करने, बट उसको कितने रेस्ट्रिक्शंस है, उसका सेफ्टी का इशू है, उसको इक्वल पे नहीं मिलती है, उसका वर्क प्लेस हरासमेंट का इशू है, ठीक है। लड़के अभी भी घर का काम कराने लगे हैं, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर गेटिंग इनटू हाउस होल्ड वर्क, बट अभी भी उनके साथ क्या है, उन पे डिमांड है कि भाई तुम सिर्फ घर का काम नहीं कर सकते, तुमको बाहर कमाने भी जाना पड़ेगा, तुमको ना बी अ मैन सिंड्रोम बोलते हैं इसको, कि यू कांट क्राई, यू कांट डू लाइक दैट, उनसे डिमांड्स है क्योंकि दैट यू शुड बी स्ट्रांग, ठीक है, दे आर अलाउड टू क्राई। तो ये आज के टाइम में है। अब फ्यूचर हम कैसा बिलीव करते हैं, जहां ये सब रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ये सब डिमांड्स ना हो, जो जिस चीज के लिए केपेबल हो वो उतना कर सके। सो ऐसे करके मैंने ये वाला टॉपिक पूरा ब्रेनस्टॉर्म किया था कि मैं इसमें ये सब चीजें लिखूंगी। नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर्स अप्रोच, वही जो मैंने बताया था, विमेन के पर्सपेक्टिव से सोचो, वल्नरेबल सेक्शन के पर्सपेक्टिव से सोचो, ऐसे करके आपके पॉइंट्स निकलेंगे। नाउ द लास्ट वन इज फिलोसॉफिकल अप्रोच। व्हाट इज फिलोसॉफिकल अप्रोच? फिलोसॉफिकल अप्रोच में क्या होता है, आप जैसे आइडेंटिटी वाला टॉपिक वाज वेरी फिलोसॉफिकल, आप जितने भी फिलोसॉफी टॉपिक्स है ना वो सब लिस्ट डाउन कर लो, कि ठीक है, ह्यूमंस क्या होते हैं, उनके वैल्यूज क्या होते हैं, उनके मोरल्स क्या होते हैं, कॉन्शियंस क्या होता है, कॉन्शियंस से कैसे आइडेंटिटी बनती है, हमारे कॉन्शियंस से कैसे हम शेप होते हैं, जितने भी एथिक्स के थीम्स है ना, उससे आप सारे एग्जाम्पल्स निकाल सकते हो। नाउ द लास्ट वन इज ऑल्टर पर्सपेक्टिव अप्रोच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हर ऐसे में काम आएगा, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। कोई भी ऐसे होता है ना, उसमें एक जो चीज दी जाती है उसको डायरेक्टली नहीं लिखा जाता, वो आप लिखो। आप अगर 8 पेज तक आपका टॉपिक जस्टिफाई कर रहे हो ना, तो लास्ट के 2 पेज में उसका अल्टर पर्सपेक्टिव भी दो, कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज सही हो, इसका दूसरी चीज भी पॉसिबल हो सकती है, राइट। तो उससे दिखेगा कि आप ऐसे इंसान नहीं हो जो अपने थॉट्स किसी पे इम्पोज करो, आप हमेशा दूसरा व्यू भी देखना जानते हो। तो हर ऐसे में आपका एक अल्टर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, भले आपका 1 पेज का हो, बट गिव इट एन अल्टर पर्सपेक्टिव, कि नहीं भाई, जैसा आप जो हमारा टॉपिक है वो तो सही बात है, पर ये दूसरी चीज भी हमको देख के चलनी पड़ती है। सो इज द बॉडी पार्ट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स अगर आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज बॉडी पार्ट से आपके 12 पेज भरने वाले हैं, सो यू शुड जस्ट कन्वे अगर आपको समझ आया कि कैसे पॉइंट्स जनरेट करने, कैसे निकालने हैं। यस, एनीवन एल्स प्लीज, एक दो लोग आप लोग लिख दो अगर आपको समझ आ रहा है तो। सी, इट्स अ 250 मार्क्स पेपर, उसमें अगर आपके 126 आ रहे हैं, यू आर स्कोरिंग मोर देन हाफ द मार्क्स, राइट, लाइक आई हैव स्कोर्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पे अटेंशन टू दिस पेपर। आपको नहीं पता, मेरे को इंटरव्यू में 160 मार्क्स दिए थे, एंड इफ नॉट फॉर द एसे एंड एथिक्स पेपर आई वुड नॉट हैव बीन इन द लिस्ट। नाउ आई एम इन द लिस्ट with my second preference at hand. So just pay attention to these parts. Okay, so some people have written it over here. मूविंग ऑन, राइट, वी आर कमिंग टू फिलर्स। जो मैं आपको बता रही थी ना इनिशियल स्टार्ट में सेशन के, कि ठीक है आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, आपने बॉडी लिख लिया, क्या चीज है जो आपको 100 से 125 प्लस, एंड इवन इस बार हाईएस्ट क्या है 150 मार्क्स, वहां तक क्या चीज लेके जाएंगी? इट इज दीज फिलर्स। फिलर्स क्या होते हैं? अभी जैसे आपने उसमें वैलिडेशन वाले ऐसे में मेरे देखा होगा, मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद मैंने एक कोट लिखा था, जो मैंने एक वेब सीरीज से निकाला था, एक सोशल डिलेमा करके वेब सीरीज थी, उससे मैंने एक कोट निकाला और मैंने डायरेक्टली वो कोट फिट बैठा दिया। वो वैलिडेशन के ऊपर था, वो कोट अच्छे से फिट बैठ गया। दैट वॉज माई फिलर। सो कोट्स आर योर फिलर्स, राइट। हेडिंग्स आर योर फिलर्स। फिलर्स क्या होते हैं? आपको किसी भी चीज को कन्वे करने के लिए बीच की जो अच्छी अच्छी चीजें डालते हो ना, जो मैंने बोला स्पीचेस, पोएम्स, कोट्स, वो फिलर्स होते हैं।
सिमिलरली हेडिंग्स क्या होती हैं, एक मैंने ऐसे लिखा था, आर्ट पेंट्स ओपिनियंस, पॉलिटिक्स पाउंड्स देम, मतलब आर्ट कैन चेंज सोसाइटी फास्टर देन पॉलिटिक्स वुड, ये ऐसे का टॉपिक था। मैंने उसमें हेडिंग बना दी, आर्ट था ना, तो मैंने ब्रश स्ट्रोक्स लिख दिए, स्ट्रोक्स ऑफ आर्ट वर्सेस स्ट्राइक्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये आप देख रहे हो, स्ट्रोक्स वर्सेस स्ट्राइक्स, मेरा टॉपिक भी लिंक हो गया और मेरा थॉट भी कन्वे हो गया कि आर्ट में स्ट्रोक्स लगते हैं, पॉलिटिक्स में स्ट्राइक्स लगती हैं। ऐसे ही मैंने लिखा था, आर्ट पेंट्स ओपिनियंस, पॉलिटिक्स पाउंड्स देम। तो ये पेंट्स और पाउंड्स देख रहे हो, ये इतना अच्छे से मैच किया था ना, दैट इट वर्कड वेरी वेल फॉर माई एसे। ऐसे ही ना, कैनवस ऑफ आर्ट मैंने लिखा था, कैनवस मतलब जिस चीज में आप पेंट करते हो उसको कैनवस बोलते हैं, कैनवस ऑफ आर्ट वर्सेस बैटल फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ऐसे करके मैंने हेडिंग डाली थी, एक एक मतलब एक एक मतलब तीन चार पैराग्राफ कन्वे करने के पहले हर 2 पेज में एक हेडिंग आ रही थी। दैट वॉज माई फिलर। उससे बाकी सबने भी सेम चीजें लिखी थी, बट मैंने जिस हेडिंग्स के साथ लिखी ना, तो वो इतनी अच्छी हेडिंग्स थी कि भाई एग्जामिनर को दिखा कि यार इसने एफर्ट पुट इन किया है, इसने ऐसे वर्ड्स अच्छे अच्छे लाए हैं, आर्ट से रिलेट किया है, फिर पॉलिटिक्स से रिलेट किया है, फिर वर्ड्स एक से ढूंढे हैं। तो ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, यू कैन टेक इट थ्रू टॉपर्स कॉपीज, बहुत इजिली अवेलेबल हो जाएगा। नाउ इफ यू कैन सी हेयर, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इट इज ओनली इन द डेप्थ्स ऑफ विंटर्स दैट वी कैन अप्रिशिएट द वार्मथ ऑफ द स्प्रिंग। ये मेरा ऐसे टॉपिक था एक टेस्ट में, इसमें मैंने विंटर को ले लिया और स्प्रिंग को ले लिया। विंटर में क्या चीज होती है, कोल्ड होता है, स्नो होती है, हर चीज ना डल सी दिखती है। स्प्रिंग में वार्मथ होता है, स्प्रिंग में सनशाइन होती है, लाइट होती है। तो मैंने ऐसे करके हेडिंग्स बना दी थी, राइट। नाउ मूविंग ऑन, मूवी रेफरेंसेस एंड सॉन्ग रेफरेंसेस। आई टेल यू दिस, बहुत लोग हर चीज छोड़ के यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं, ये थोड़ा गलत अप्रोच होता है। आपको सब चीजें साथ में लेके यूपीएससी की पढ़ाई करनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपका ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है ना। आई टेल यू समथिंग, जो लोग मूवी देखते हैं ना, उनको कोट्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, उनके पास एग्जाम्पल अच्छे अच्छे आ जाते हैं। अब जैसे लास्ट ईयर का एक ऐसा टॉपिक था दैट लाइफ, नो, लाइफ is not about a destination, it's a journey. दिस वॉज लास्ट ईयर ऐसे टॉपिक, लास्ट ईयर आया था, मैंने इस पे नहीं लिखा था, बट मेरे एक फ्रेंड ने इस पे लिखा था। उसने पता है एंडिंग कैसे करी थी, उसमें बीच ऐसे में उसने डाल रखा था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और ही गॉट अ 117 विच वर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो ऐसी चीजें ढूंढो, ऐसी लाइंस ढूंढो, कुछ गजल्स ढूंढ लो, कुछ इंग्लिश के सॉन्ग्स की लाइंस ढूंढ लो, कुछ कोट्स ढूंढ लो, ये सब चीजें डालो। मूवी का कुछ डालोगे, कुछ कहीं से कोट का डालोगे, तो इससे ना एग्जामिनर को लगे कि यार ठीक है। आप सोचो, एक वो बूढ़ा एग्जामिनर है, उसको कितना मजा आएगा ये लाइन सुन के कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। या एक फ्रेंड ने लास्ट में कंक्लूजन में एक लाइन डाली थी, आनंद मूवी की लाइन थी कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। ऐसी चीजें लाओ अपने एसेज में, डोंट मेक इट मोनोटोनस। आपका जीएस तो वैसे ही मोनोटोनस है, आपको पॉइंट पॉइंट करके लिखना ही पड़ रहा है। ब्रिंग इनोवेशन इन ऐसे पेपर्स। सो ऐसी चीजें करके लाओगे ना, तो अपने आप एग्जामिनर का इंटरेस्ट कैच होगा एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर इट, राइट। मूविंग ऑन, कंक्लूजन। ठीक है, अभी वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। कंक्लूजन में क्या होता है, आपने देखा इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नाउ कंक्लूजन क्यों जरूरी है, बिकॉज लास्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। अगर आपने पूरा ऐसे अच्छा लिखा, बट आप एंड में ना, एग्जामिनर एंड में ही मार्क्स देता है, वो बीच ऐसे में तो मार्क्स देगा नहीं पढ़ते पढ़ते। अगर आपने एंड में उसको एलिवेट नहीं किया ना, तो उसको भले पूरा ऐसे अच्छा लगा होगा, वो एंड में बोलेगा कि नहीं यार कुछ तो मिसिंग था, इसको थोड़ा कम ही देना चाहिए मार्क्स। ठीक है। एंड कंक्लूजन में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जो उन्होंने पूरे ऐसे में लिखा रहता है ना, उसको छोटा सा एक पैराग्राफ में करके लिख लेते हैं कि एज वी हैव सीन इन दिस ऐसे, दिस इज दिस 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 दिस। वो एक मेरे हिसाब से अच्छा अप्रोच नहीं है, वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा और आपका टाइम खत्म होने वाला हो ना, तब बस आप वो लिखो। अदरवाइज ना एग्जामिनर को लगता है कि यार इसने तो एफर्ट ही नहीं डाला कंक्लूजन में। तो जैसे कि मैं कह रही थी, अब जैसे मेरे फ्रेंड ने वो लाइन लिख दी थी कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, वो उसने ऐसे के एंड में लिख दी थी। तो वो एग्जामिनर इतना खुश हो गया ना वो लास्ट की लाइन पढ़ के, कि ही इंस्टेंटली गेव दैट पर्सन द मार्क्स। ठीक है। ऐसे आपको जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन की स्टाइल्स बताई थी, मैं आपको कंक्लूजन की बता देती हूँ। फर्स्ट इज लाइफ साइकिल अप्रोच। आप सेकेंड पॉइंट में देखिए, लाइफ साइकिल अप्रोच, चंदू चैंपियन स्टोरी। चंदू चैंपियन करके एक मूवी आई थी, इट वॉज अबाउट अ स्पोर्ट्स पर्सन। वो मूवी स्टार्ट हुई थी कि वो जो प्रोटैगनिस्ट है ना, कार्तिक आर्यन था उसमें बाय द वे।
सो बहुत अच्छी मूवी, आप में से कोई भी अगर टाइम पास करने की सोच रहा है ना, वो मूवी देख लो, ऐसे पेपर में हेल्प कर देगी। तो प्रोटैगनिस्ट स्टार्ट कैसे करते हैं कि हंसता काय को है, उस पे लोग हंस रहे थे, राइट। एंड वो मूवी एंड भी होती है हंसता काय को है से, कि तुम मेरे पे हंस क्यों रहे हो, मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही ना एक स्माइल पे ऐसे आया था एक मेरे एक टेस्ट में, तो मैंने सेम अप्रोच यूज किया था। मैंने स्टार्ट किया था डबल कॉलन में हंसता कायको है, एंड देन आई जस्टिफाइड कि ओके, मोस्ट पीपल वर लाफिंग एट हिम व्हेन ही वाज थिंकिंग हाउ ही शुड गो अबाउट इट। आप वो मूवी देखना, आपको कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा। और जब मैं उसके कंक्लूजन में गई ना, मैंने मैंने यही लिखा कि वेन एवर पीपल लाफ एट यू, यू प्रूव देम रॉन्ग एंड देन यू से डबल कोट्स में हंसता कायको है। ठीक है, तो जहां से मैंने शुरू किया था ना, उसी का लाइफ साइकिल पे लाके मैंने खत्म कर दिया। इट वाज सो, मतलब उस ऐसे में मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिले थे, बिकॉज द एग्जामिनर वाज सो इम्प्रेस्ड कि भाई इसने यहाँ से शुरू किया था, यहीं पे खत्म किया। सो अभी मैं आपको कुछ शीट्स दिखाऊंगी, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अप्रोच फॉर कंक्लूजन इज पोएम्स। एक आप कुछ पोएम्स का कलेक्शन बना लो, टॉपर्स ने बना के रखा है, हर कोई उनको याद करके जाता है, आप भी बना लो, उन्हीं की उठा लो और उन्हीं को याद कर लो। कुछ भी टॉपिक आएगा ना, उसमें आप डायरेक्टली वो पोएम से एंड कर सकते हो। एक अच्छा पोएम एग्जामिनर पढ़ेगा, वो खुश हो जाएगा, वो आपको मार्क्स दे देगा। तो एक इफ करके पोएम है बाय रुडयार्ड किपलिंग, यू कैन गो थ्रू इट, राइट। एंड कोट्स का तो मैंने बता ही दिया, जिंदगी एक सफर है सुहाना। क्वेश्चन, ये मेरा थोड़ा नया स्टाइल था कि मैं कोई भी चीज एंड करनी होती थी ना, तो एक क्वेश्चन पे एंड कर देती थी, कि पूरा समझाया, सब कुछ किया, फिर जब एंड लिखा ना, सो मैं ऐसे करके एंड करती थी कि ओके, व्हाट विल योर कंट्रीब्यूशन बी, क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जामिनर से मैं बात कर रही हूँ कि अब आप सोचो कि ऐसा क्या होना चाहिए। या मैं फ्यूचरिस्टिक विजन पे एंड करती थी कि ठीक है, बॉयज को अभी गर्ल्स को सबको रोका जा रहा है, हमको फ्यूचर में क्या करना है, आई एस्पायर फॉर अ वर्ल्ड वेयर नो वन इज रेस्ट्रिक्टेड, वेयर नो वन इज इन चेंज। ऐसे करके लिखो कुछ, कि आपका थॉट प्रोसेस दिखे कि ये आगे का भी सोचता है, राइट। दिस वॉज इट। एंड इसमें मैंने कन्वे कर ही दिया कि रेदर देन समिंग अप वॉट एवर यू रोट, ट्राई दीज स्टाइल्स आउट। एंड एआई का मैंने आपको यूज बता ही दिया, एआई से पूछो ऑल्टरनेट इंट्रोडक्शन, ऑल्टरनेट कंक्लूजन, अच्छी वोकैबुलरी एआई आपको लिख के देगा, उससे कुछ कुछ भी पढ़ लोगे तो आपका ऐसे बन जाएगा, राइट। नाउ आई विल प्रोबेबली शो यू अ फ्यू ऑफ माई शीट्स, राइट। ये आपको कुछ शीट दिख रहे होंगे, आई जस्ट जूम इट इन। हम्म, ये आपको जो मैंने बताया ना, एक ऐसे मैंने आपको बताया था, इन द डेप्थ ऑफ विंटर्स कैन वी अप्रिशिएट द वार्मथ ऑफ स्प्रिंग। ये ऐसे का टॉपिक था, ये आप इसमें जो ब्लैक पेन से लिखा है उसको देखो, ये मेरा कंक्लूजन था। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लिखा है, द नेक्स्ट टाइम व्हेन विंटर्स कम रिमाइंड दैट स्प्रिंग इज जस्ट मंथ्स अवे विद दीज लाइंस। ये एक छोटी सी पोएम है, ये अमंग्स मेरी फेवरेट पोएम है। ऐसे करके मैंने ऐसी पोएम्स याद करके रखी थी, तो मेरे को इंस्टेंटली आ गया था कि इसमें मैं यही लिखूंगी, जस्ट रीड इट। Life is unpredictable, it changes with the seasons. Even your coldest winters happen for the best of reasons. And though it feels eternal, like all you would ever do is freeze, I promise spring is coming and with it brand new breeze. Now just look at it. कोई भी आपने भी पढ़ा होगा तो आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, वैसे ही एग्जामिनर को भी अच्छी लगेगी। और ये कितनी फिट बैठती है, उसने एक सीजन से रिलेटेड टॉपिक दिया, मैंने उसको सीजन से रिलेटेड पोएम दे दी। अभी मुझे थोड़ी पता था कि यही टॉपिक आने वाला है, आई जस्ट प्रिपेयर दीज थिंग्स बिफोर हैंड, कि भाई किसी भी ऐसे में आएगा ना, मैं ऐसा कुछ डाल दूंगी। एंड थैंकफुली उस दिन ऐसे ऐसे आ गया और मेरी पोएम काम में आ गई। तो ऐसे कुछ पोएम्स आप याद कर सकते हो। एंड ये एग्जामिनर ने मार्क किया था कि राइटली कंक्लूडेड, तो ये काफी अच्छा रहता है इस तरीके से करना। नाउ लुक एट द राइट साइड ऑफ इट। इन ये मेरा 2024 का जो ऐसे आया था ना, उसको मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया था, राइट। तो वो ऐसे ऐसा था कि द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट थिंग्स हील द बेस्ट रिजल्ट्स। मतलब कि आपकी छोटी छोटी सिंपल चीजें होती है ना, उनमें भी आपके बेस्ट आइडियाज छुपे रहते हैं। तो जस्ट रीड इट, इन अ नटशेल द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट्स इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आर rather सिंपल आइडियाज एट वर्क। इन हाइंडसाइट वी कैन सी द पोटेंशियल दिस आइज आर होल। और मैंने यहाँ पे भी एक छोटी सी पोएम डाल दी कि इन द मुंडेन द मैजिक लाइज अवेटिंग अस विथ ओपन आइज, इन द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट थिंग्स अ वर्ल्ड ऑफ विजडम ऑफन स्विंग्स। ये मैंने एआई से निकाली हुई पोएम है, एंड इट फिट वेरी वेल। तो किसी कोई भी ये पढ़ेगा तो मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स दे ही देगा, राइट। सो दिस वॉज द सेंस आई वॉज ट्राइंग टू कन्वे कि क्यों आपको नोट्स बनाने चाहिए। नाउ लुक एट इट, या ये जो हम आइडेंटिटी वाला ऐसे जिसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था ना, वो पजल वाला इंट्रोडक्शन, ये उसका कंक्लूजन है। एंड इसमें मैंने क्वेश्चन से एंड किया है। एक मूवी है डेड पोएट सोसाइटी करके, उसमें ये लाइंस थी कि दैट द पावरफुल प्ले गोज ऑन एंड यू मे कंट्रीब्यूट अ वर्स, व्हाट वुड दैट वर्स बी।
ये एग्जैक्ट लाइंस उस मूवी में यूज करी गई थी। तो मैंने भी एग्जामिनर से पूछ लिया कि भाई, बी इट अ पर्सनल जर्नी और सोशल कंस्ट्रक्ट, व्हाट वुड योर रिफ्लेक्शन ऑफ योर आइडेंटिटी बी, व्हाट वुड योर वर्स बी। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन से एंड कर दिया, दिस वाज माय स्टाइल, एंड थैंकफुली किसी ने ऐसा कंक्लूजन नहीं लिखा था। नाउ मूव ऑन टू द राइट साइड। हाँ, इसमें मेरे को एक प्रेजेंट के ऊपर आया था कि कैसे प्रेजेंट में जीना चाहिए, कैसे हमको अपने आप को फाइंड करना चाहिए। तो वही उसी में मैंने ये डाल दिया था कि प्रेजेंट क्या होता है। एक प्रेजेंट होता है प्रेजेंट टाइम, और एक प्रेजेंट होता है गिफ्ट। तो मैंने ये उस वाले गिफ्ट से लिंक कर दिया, वी हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ लाइफ, द प्रेजेंट इंडीड। In this present, we can create ourselves by finding ourselves and improving. Let's put the right building blocks by finding them and let our imagination do wonders. So ये वही लाइफ साइकिल अप्रोच भी आ गया, इसमें फ्यूचरिस्टिक विजन भी आ गया। सो ऐसे करके मैंने कंक्लूजन्स लिखे थे। नाउ द इट वाज दिस फ्रॉम माय साइड। इसके साथ एक स्पेसिफिक आपको एक ट्रिक बताती हूँ, टिप देती हूँ। जब भी आपको ऐसे प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस टफ टॉपिक्स, डोंट गो फॉर वेरी इजी टॉपिक्स। क्योंकि अगर आप बहुत इजी टॉपिक्स के पीछे जाओगे ना, कोई और डेफिनेटली होगा जो आपसे बेटर वोकैबुलरी यूज कर लेगा, जो आपसे बेटर एग्जाम्पल्स यूज कर लेगा। तो आप थोड़ा सा टफ टॉपिक चुनो जिससे आपका टॉपिक थोड़ा नया है, एटलीस्ट इन द प्रैक्टिस। फिर रियल एग्जाम में तो जो चूज करोगे वही करोगे, बट एटलीस्ट इन द प्रैक्टिस चूज अ लिटिल टफ टॉपिक, सो दैट यू गेन एडवांटेज ओवर अदर्स, जिससे एग्जामिनर बोर ना हो, वो आपका कोई नया टॉपिक पढ़े ना, he or she gives you extra 2 marks also, right? So this was from my side. I will now expect doubts, किसी के भी जो भी आपके doubts हो ऐसे papers related, please put them in the chat box and I'll revert back to them. कोई भी ऐसे से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई डाउट्स हो, कोई और प्रॉब्लम आ रही हो जो आपको ऐसे में, प्लीज पुट इट ओवर हियर। I'll be waiting for 2 minutes. Any of you, if there are any doubts, how to use peripheral knowledge in essay? Okay. पेरिफेरल नॉलेज से आई एम अज्यूमिंग कि आपकी जो जीएस की नॉलेज होगी आप उसकी बात कर रहे हो। इज दैट व्हाट द सेंस इज? एक बार यस या नो लिख दो। यस, राइट। जीएस की नॉलेज कैसे यूज करें? सी, जीएस में क्या होता है, आपको एग्जाम्पल्स पता होंगे। जीएस में अगर आप आर्ट एंड कल्चर में कोई एग्जाम्पल देते हो ना वर्ली पेंटिंग्स का, कि वर्ली में ऐसे डांस की पेंटिंग है, वही मैंने बताया कि अब उन पेंटिंग से आप आर्ट वाले ये अपना आइडेंटिटी वाले ऐसे में यूज कर लो, कि भाई पास्ट के टाइम से लोग ऐसे वर्ली पेंटिंग्स के थ्रू यूज करते थे। एक ये यूजेज हो गया। सेकंड, जीएस में आपको फैक्ट्स कुछ कुछ याद रहते होंगे। कुछ लोग ये फैक्ट से चीजें स्टार्ट करते हैं, कि जैसे वो गर्ल्स वाला ऐसे था ना, गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस, बॉयज विद डिमांड्स। उसमें कुछ लोग ऐसे ही स्टार्ट करते थे कि इंडिया में कितनी वुमेन है जो कितनी लेबर फोर्स में नहीं है, ऐसा करके फैक्ट दे देते थे। देन वो बताते थे कि इंडिया में कितने मेन हैं जो घर का काम बिल्कुल नहीं करते, उसके भी फैक्ट्स हैं कि विमेन डू थ्री नहीं मेन डू नहीं विमेन डू 3 times मोर वर्क देन मेन। तो ऐसे करके वो दोनों को मिला के लाते थे कि इससे दिखता है कि भाई इनको रेस्ट्रिक्शन है, इनको डिमांड्स हैं इंडिया में, ऐसे करके तो वो फैक्ट यूज हो जाएंगे। थर्ड इज, पहले तो भाई सिलेबस वाला अप्रोच हो गया, कि ठीक है पहले अपने सिलेबस में दिमाग से घुमाओ और सारे जितने सिलेबस के पॉइंटर्स आ रहे हैं ना, कि इसमें पॉलिटी का ये डाल सकते हैं, इकोनॉमी का ये डाल सकते हैं, साइंस का ये डाल सकते हैं, वो चीजें लिख लो। जैसे कि अब जैसे अपने वो पढ़ा था, लाइफ के बिटर एक्सपीरियंसेस ही बेस्ट लेसन टीच करते हैं। तो उसमें मेरे को अभी साइंस का एक हिट किया कि भाई इसरो इसरो को कैसे समझ में आया, इसरो को ना नहीं, एक्चुअली इंडिया को जीपीएस टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था यूएसए ने ड्यूरिंग कारगिल वॉर। यूएसए ने बोला था हमको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। तो भाई इंडिया को वो बिटर टाइम्स में अपना बेस्ट लेसन मिला कि भाई हमको खुद का बनाना है। सो वी वेंट टुवर्ड्स आत्मनिर्भर, वी वेंट टुवर्ड्स स्वदेशी, ये एक एग्जाम्पल हो गया। सो ऐसे करके आप अपने सिलेबस रन करो। नेक्स्ट वुड बी और पेरिफेरल नॉलेज कैसी हुई, देखो एथिक्स तो पूरा ऐसे से लिंक हो जाता है। आई डिड नॉट प्रिपेयर सेपरेटली फॉर बोथ, मैं बस आंसर राइटिंग अलग से करती थी। ऐसे के जितने आइडेंटिटी थीम है, काइंडनेस थीम है, रेजिलियंस थीम है, परसिवरेंस थीम है, सब ऐसे में यूज हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू यूज इट। लेट मी नो अगर आपका डाउट सॉल्व हुआ हो, टिल आई टेक अनदर डाउट। शुड बी यूज अवर ऑप्शनल डेप्थ इन ऐसे, आई गॉट द या ओके। कमिंग टू दिस, यार देखो ये थोड़ा सा रिस्की होता है। आई एम अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट, मैंने कहीं भी ऑप्शनल का नॉलेज ऐसे में यूज नहीं किया है। और जब मैं दूसरों के ऐसे पढ़ती हूँ ना, जो लोग यूज करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं, स्पीकिंग इन कॉलोकियल टर्म्स। बिकॉज ना, यू आर अ से सोशियोलॉजी स्टूडेंट, अब आप तो दरखाइम को अच्छे से लिख के आ जाओगे, आई एम नॉट, आई एम एन एग्जामिनर। अब मुझे दरखाइम का वहां पे फिट ही नहीं दिख रहा है, तो मैं क्यों यूज करूं? इससे बेटर है, ठीक है, कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं जो
कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो हर जगह यूज, अब जैसे महात्मा गांधी हर जगह यूज आते हैं, नेल्सन मंडेला हर जगह यूज आते हैं। तो रेदर देन ब्रिंगिंग योर ऑप्शनल के थिंकर्स या ऑप्शनल का नॉलेज, आप इनको यूज करो। ठीक है, जो हर जगह सब हर किसी को पता होता है, बी आर अम्बेडकर हर किसी को पता है। यूज थिंग्स लाइक दिस। एंड अगर आपको ऑप्शनल का कुछ अच्छा इतना आता ही है जो आपको यूज करना है, तो राइट इट इन सिंपल लैंग्वेज। फिर वो ऑप्शनल के टर्म्स मत यूज करो कि अच्छा ठीक है, आई डोंट नो सोशो के ऑप्शनल के जो भी टर्म्स, अब मुझे मैक्स वेबर का पता है, ही टॉक्ड अबाउट अनोनिमिटी, ही टॉक्स अबाउट थिंग्स लाइक दैट। मैं वो नहीं यूज करूंगी, मैं उसको सिंपल वे में कन्वे कर दूंगी। सो अगर आपको करना भी है तो इस वे में करो कि इट्स सिंपल फॉर एनीवन। आप एक 5 साल के बच्चे को पढ़वा रहे हो, ऐसे कन्वे करो। हाउ टू पिक अ रिलेवेंट एग्जाम्पल, व्हाट इफ द एग्जामिनर डजंट रेजोनेट विद द सेम, वुड दैट बी राइट? देखो, ये प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को ना, हम जब अपना खुद का ऐसे पढ़ते हैं हमको लगता है हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो तो बिल्कुल ही फिट हो रहा है। इसका बेस्ट वे है ना, जस्ट गिव योर शीट टू योर फ्रेंड और गिव योर शीट टू योर मेंटर। उनको बोलो आप ना कुछ मत पढ़ो, आप सिर्फ 5 मिनट लगा के ना मेरा इंट्रोडक्शन बस पढ़ लो। अगर उनसे लिंक हो रहा है, उनको बोले हाँ यार ये तो तुमने पते का इंट्रोडक्शन दिया, तो इट वुड फिट। इफ नॉट इट वोंट। सिंपल। और जैसे कुछ एग्जाम्पल होते हैं, अब जैसे हार्डशिप के एग्जाम्पल होते हैं ना, हार्डशिप तो सबको समझ आ ही जाता है ना कि भाई इसकी एक्चुअल हार्डशिप थी, वो लिखो। और ट्राई यूजिंग द टर्म्स इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। अब जैसे आइडेंटिटी वाले ऐसे में इफ यू सी, मैंने आगे जाके ना पूरा तामझाम वाली बातें करी, लेकिन मैंने आगे जाके उसको आइडेंटिटी पे ही एंड कर दिया और मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया, तो इंस्टेंटली मेरे टॉपिक से लिंक हो गया। सिमिलरली आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे ना आपको अपने आप समझ में आएगा कि कौन सा एग्जाम्पल बैठ रहा है और कौन सा मैं जबरदस्ती बैठा रहा हूँ। तो जो जबरदस्ती बैठा रहे हो उसको अलग कर लेना, उसकी जगह चैट जीपीटी से दूसरे एग्जाम्पल्स मांग लेना एंड उनको फिट बैठा देना। राइट? लेट मी नो अगर आप तीनों में से लोगों के डाउट्स आंसर हुए हो तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मीनवाइल अदर्स यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट, और भी कोई डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। हाउ टू यूज सिंपल लैंग्वेज इन ऐसे। ओके, आपने अभी मेरा वो पजल वाला एग्जाम्पल, पजल वाला ऐसे पढ़ा ना इंट्रोडक्शन, कि हम बचपन में पजल्स खेलते थे फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स पे आए, उसमें आपको कुछ ऐसी फ्लैरी लैंग्वेज दिखी क्या? सी, कीप एग्जैक्टली नो, बिकॉज जो मैं सोच रही हूँ ना वही बस मैं चुपचाप धीरे धीरे लिख दे रही हूँ। दैट्स हाउ यूज सिंपल लैंग्वेज इन ऐसे। फ्लावरी लैंग्वेज आती है तो ठीक है, बट यूजुअली सिंपल लैंग्वेज वर्क्स। अगर आप इफ यू गो थ्रू लास्ट ईयर, आप लास्ट टू लास्ट ईयर की टॉपर हर्षिता गोयल मैम है, एक बार उनके ऐसे देखना, वो तो और ही सिंपल लैंग्वेज में कन्वे करती है। वो बहुत ऐसे ना केक वॉक टाइप कन्वे कर देती है कि आपको दिमाग ही ना लगाना पड़े समझने में। सिमिलरली मेरे कुछ कुछ एसेस में थोड़ी हैवी लैंग्वेज आती है बिकॉज आई एम एन आर्ट्स स्टूडेंट, तो कुछ कुछ जगह वो मेरा आर्ट्स वाला वो झलकता है। बट यूजुअली आई ऑल्सो कीप इट सिंपल। गो थ्रू मल्टीपल टॉपर्स कॉपीज। समटाइम्स इफ यूज सिंपल लैंग्वेज इट टेक्स टू मच वर्ड्स। सो ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है ना, जो आप पहले लिखो ऐसे, अगर आपको दिख रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स यूज हो गए, एग्जैक्ट वही का वही पैराग्राफ चैट जीपीटी पे लिखना। ठीक है, उसको बोलना कन्वे इट टू मी इन सिंपल लैंग्वेज एंड शॉर्ट फॉर्मेट। सी, कई लोग ना एआई का बहुत मिसयूज करते हैं, वो पूरा ऐसे ही चाहते हैं कि एआई बता दे, खुद का दिमाग लगाना ही ना पड़े। दैट विल बैकफायर, बिकॉज आपको एग्जाम प्रेशर में ना एआई नहीं याद आएगा, आपको खुद की स्टाइल याद आएगी। तो क्या करो, खुद का लिखा ना उसको डायरेक्ट एआई में टाइप करो और उससे बोलो कि गिव मी द शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ इट इन सिंपल लैंग्वेज बट विथ गुड एक्सप्रेशन। ऐसा करके प्रॉम्प्ट दो, आपको एआई आराम से वो काम करके दे देगा। यू डोंट इवन नीड पीपल टू टेल यू कि भाई ये ज्यादा है कि ये कम है। एआई से पूछो, एआई आपको करके देगा। एंड आप ये काम मैं बोलती हूँ 5 बार करना। 5 पैराग्राफ को छोटा करके देखना, 6वें पैराग्राफ में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अरे यार इसमें मैं ये हटा सकती थी, इसमें मैं ये हटा सकती थी, इसमें मैं ये चीज जोड़ सकती थी। सो दैट्स हाउ इट विल टर्न आउट फॉर यू। मतलब मैंने तो ऐसे ही एआई का यूज किया कि मुझे जो चीज लंबे लंबे बोलने में लिख रही है ना, एआई पे डालो, उससे बोलो छोटा करके दो, अच्छा करके दो, सिंपल लैंग्वेज दो, वो देता है, वो आराम से ये काम करता है। एनीवन एल्स? प्लीज लेट मी नो एनी ऑफ द डाउट्स, और कोई डाउट्स हो तो, और कोई प्रॉब्लम आती हो ऐसे में तो। लास्ट टाइम यू यूज्ड क्वेश्चन आंसर अप्रोच, दैट्स गुड। मतलब अगर आपका अप्रोच फिट बैठ रहा है और उसमें आप ढंग से कन्वे कर रहे हो, तो एनी अप्रोच फिट्स यार। सी, ऐसे में बस एक चीज मत करना, एक एक्सपेरिमेंट बस मैं करने से मना करूंगी, ऐसे में डायग्राम मत बना के आना। वो बहुत रिस्की रहता है, इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर, उसमें अगर डायग्राम बना के आते हैं ना, बहुत रिस्की रहता है। मे बी सम एग्जामिनर लाइक्स इट, बट 90% ऑफ द टाइम एन एग्जामिनर वोंट लाइक इट बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर। ये एक एक्सपेरिमेंट छोड़ के बाकी जितने एक्सपेरिमेंट समझ में आते हैं ना, वो एक बार करके आओ।
मॉक टेस्ट लिखोगे ना, मॉक टेस्ट में करो, खुद से ऐसे लिखोगे, खुद से करो, अपने फ्रेंड से चेक कराना कि यार ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, अ, वो वर्क कर रहा है कि नहीं। वर्क कर रहा है, कंटिन्यू विद। मैं एग्जामिनेशन हॉल में एक्सपेरिमेंट करके आई थी, मैंने 2 पेज का इंट्रोडक्शन लिखा था स्टोरी सुनाते सुनाते। अब क्योंकि उन्होंने 15 पेज दे रखे थे, तो ट्राई व्हाट वर्क्स, ट्राई, देखो। You used to ask many questions, answer it one by one. You can do that. You can definitely do that. यू कैन गेट इट डन, आप कर सकते हो वही। बस दो ऐसे में ट्राई करो कि सेम सेम चीजें ना हो, कम चीजें हों, एंड मे बी दैट वुड वर्क फॉर यू। इसका मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी ऐसे पेपर स्टार्ट हो ना, दोनों ऐसे को एक साथ ब्रेनस्टॉर्म करना। टेक 30-35 मिनट्स टाइम, पीछे एक रफ पेपर रहता है, एक तरफ एक ऐसे लिखना, एक तरफ दूसरा लिखना। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली टेक्निक होती है, मैं क्या लिखूंगा इसमें, दोनों को एक साथ करना। बिकॉज क्या होता है, कई बार बीच ऐसे में ना, जब हमारा एक ऐसे खत्म होता है, फिर हम दूसरा ब्रेनस्टॉर्म करने जाते हैं ना, हमारा दिमाग थक जाता है, हम सेम सेम चीजें रिपीट करते हैं, हमारा हमारा सेकंड ऐसे अच्छा नहीं लिखा जाता। सो यू डू थिंग्स लाइक दैट। दो ऐसे को साथ में ब्रेनस्टॉर्म में देखना, एक में पोएम यूज करिए तो दूसरे में कोट यूज कर देना, एक में स्टोरी में स्टार्ट किया तो दूसरे में कॉन्वर्सेशन में स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो ऐसा करके देखना, इट वोंट बी मोनोटोनस। I'll be taking doubts for another 5 minutes. अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पुट इट ओवर हियर, देन मे बी वी कैन एंड द सेशन। Okay, so thank you to the SPMIS Academy. Thank you so much for giving me this opportunity to actually convey what I felt about essay paper to the aspirants, and I really hope all of you sail through. I really hope all of you just get through the process. And in case you would like to, you would need any further guidance, we will keep connected. We will be having such sessions by SPMIS Academy. So we will stay connected, and you can go through my Telegram page. I'm just waiting for 1 more minute. अगर किसी का doubt हो तो you can put it. Okay, so all the very best everyone. Write good essays, score good marks over there, and it will give you results. अगर आप ऐसे में थोड़ा भी time लगा लोगे, it will give you very best results. And looking forward to further such sessions. We will stay connected. Thank you so much. Thank you.